Good afternoon, friends. So, we have come to the last lecture for the intermediate for the students who are going to appear for May 2025 examination. September 25, they will have group 1 pending, obviously. I hope I'll meet them in the group 1. Huh? And I'll meet other in CA final. Option of fast track might be available, which I don't want anyone to exercise. If need required, you decide. So today let me give you a brief understanding of how you should be planning the remaining months. You can use it for September 25 because I frankly don't know as of now. So whether you are going to go for May 25 or September 25 or Jan 2026 or wherever you are watching and whenever you are planning, I'm giving you rough idea as to hours required. I'll make a basic Excel sheet and I'll share the Excel sheet also with you. I'm sharing it only for the 3 subjects: accounts, costing and financial management. Rest all you take care. So broad understanding as to how many hours you will require. Let us start with the costing. So let us say this is rough understanding I'm giving you for the costing. The screen nahi aaya kya? Oh, okay. So I'll share the Excel sheet, so there's no need to write. If you want to, you can. So basically I want to tell you something about the preparation, then few lessons to carry, and then if you people have any questions, I'll take the questions and we'll say bye bye to each other. So listen up. These are maximum possible hours. Logically, these are not the hours that you should be taking for studies. I'm just writing a maximum possible number of hours that are logically required for doing the entire chapter and teaching entire chapter. But for study purposes, obviously you should not be dividing these hours, because for our lectures, obviously initially it's a new subject, so you need a more time for initial chapters and then the time comes down. But you should not be devoting the time in proportion to what time you took in the lectures. This is the sequence in which we have done the chapters. These are approximate hours for which we have done the chapters. For your studies, in my opinion, the sequence should be dramatically opposite. Assuming that you know something of what is there in the subject. अगर आपको subject में क्या है वो मालूम नहीं तो obviously you'll have to start with the cost sheet chapter or material chapter or labor chapter, which in my opinion is very, very boring, because you start up and then you find, why the hell am I studying this? Because you will encounter EOQ, you will encounter Halsey, you will encounter Rowan, you will encounter the cost sheet. So in my opinion, the sequence for the studies should be a little different. So that's why the first column I have kept a sequence. I'm gonna change the sequence now, and let us say I will kickstart first with directly, let's say, okay, now some students would have done the group 1 first and then the group 2. Some students will do group 2 first, group 1 later. So when you start a preparation in last 2 months or last 2.5 months, depending on whatever you will get, which one to start first? Should I start with the group 2 or should I start with the group 1? In my opinion, you should start with the both, but with a different allocation of hours. Right now, those who have done the group 2 and now going for the exam, group 2 is fresh. So group 2 would not require too much of time for the quick revision. It will require very less amount of time, group 2. So you should be doing group 2 first with, let's say, if you are looking for 12 hours a day, I'll allocate
8 to the group 1, I'll allocate 4 to the group 2 because group 2 is fresh. So I'll still allocate lesser number of hours to group 2 so that I can recollect topics quickly. If your group 1 is the ending group 1 and that would be more fresh in the brain, so you would end up allocating 8 hours to group 2 and 4 hours to group 1. तो जो fresh है उसको कम time में allocate करो. Don't go for one subject a day. Split out basically 3 subjects a day. 12 hours you'll have to slog in. There is no choice, unfortunately, because number of days are lesser, number of hours required is more. तो 12 घंटे तो slogging करना पड़ेगा, option नहीं है. There is no choice. But don't take a slot more than 1 hour or more than 2 hours. 2 is max. You study 1 hour, take a 5 minutes break, listen to some song, dance, do something in the home, whatever you want to do it. Do anything other than scrolling social media or news or anything. Like these 2 months, you have to cut off from everything. Unfortunately, there is no value of those things in the life. What is required in those 2 months is music, you should continue, or some basic exercise activities that you are doing, or those who are let's say health freaks or gym freak. So whatever activity, basic activity. So don't do at a stretch. Small activities at home also you can carry out. Those activities you can carry out, talking to parents, that is okay. Other than checking social media, other than checking news also you should stop consuming now for until exams. So those many hours you have to allocate. Now let us see subject by subject situation achievable hai kya pehle. So I go down first with the costing, brief background के साथ. I'll kickstart with the standard costing, sequence number 1. वो repeat हो गया, that's why मैंने formula लगा के रखा है उसको. So chapter number should not repeat. Standard costing should take around 10 clock hours. Now what do? I'll quickly revise a notebook. I'll do audit of the questions and solve few questions from module or Q series questions which we have in the book. क्यू सीरीज सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करो. अगर क्यू सीरीज ऑलरेडी सॉल्व किया था, मॉड्यूल सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी अपने नोटबुक का ऑडिट कर लिया. अब टाइमिंग वाइज आपको कैसे डिवाइड करना है, दैट विल कम एट द एंड. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड सिचुएशन पॉसिबल है क्या. देन आई विल गो टू द मार्जिनल कॉस्टिंग. शुड बी 6 hours इनफ, 8 hours इनफ. बजट should be max 6 hours, won't require too much of time. So I'll first knock off these 3 biggies. Assuming, see, it's not that you don't know anything of the costing. I'm assuming you have studied it first, you have attended lectures, so you know the sequence. Because if you start with the chapters like cost sheet, material, you'll end up spending a lot of time there, and where ROI is lesser in terms of number of marks that you're going to get in the exam. इस टाइम पे थ्योरी ब्रीफ में देखना है. थ्योरी जो भी है वो आप एंड में अलग से थ्योरी का एक दिन, वो नीचे में आर से ऐड करता हूँ, एक दिन ही ऐड करते 12 घंटे ले भाई, ऑल इंटर सब्जेक्ट, क्योंकि उसके पहले पढ़ के कोई फायदा होने वाला नहीं है. देन आई विल कम डाउन टू दी ओवरहेड्स कैटेगरी. देन कैटेगरी बी मटेरियल लेबर ओवर, ये जो है ना मटेरियल लेबर इंट्रोडक्शन सबसे एंड में करना है. कॉस्ट शीट इमेजिन करो आप पहले चालू किया, क्या होगा आपका. असम्पशंस के साथ लाइफ नहीं चल सकता ना. ओवरहेड्स 12 घंटे, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऑडिट करना क्या है, क्विकली क्वेश्चंस का क्या करना है, ऑडिट करना है. अगर आपको कॉन्सेप्ट ही रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे, तो मुश्किल है. फिर कॉन्सेप्ट रिकलेक्ट नहीं हो रहे, तो मैंने कॉस्टिंग के सारे क्रिस्प कॉन्सेप्ट रिवीजन जो है यूट्यूब पे डाले हुए हैं. मेरा यूट्यूब पे चैनल पे जाओगे तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो देख लेना, क्योंकि दैट विल बी डूइंग an individual chapter from YouTube is going to be beneficial only to the faculty, not to the student. It's a very, very pathetic technique to go and watch the lectures during your self-study time. So you will not pass by watching lectures. See, if you want to watch, it will help me views, and then I will get a marketing. Yeah, I'll put some chatbot. अगर व्यूज बढ़ाने टीचर तेरे को एक और एक सीक्रेट बोलता है, जैसे 500-1000 रुपए में चैटबॉट मिलता है, ये बॉट्स मिलते हैं, तो उस बॉट से व्यू बढ़ाने का, देन थंबनेल बना के बोलने का, ऐसा कर सकता हूं. बट दैट इज नॉनसेंस. क्यों?
हाँ, अगर आपको कोई चैप्टर पे अंडरस्टैंडिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, तब जाके आपने रिवीजन वीडियो देख लिया, ये देख लिया, आई कैन अंडरस्टैंड। बट वो वीडियो देख के आपको, अगर आपको मालूम है चैप्टर वगैरह है, तो सेल्फ स्टडी पे लगो ना। मार्क्स पेपर में आपको वो टीचर नहीं आने वाला, मैं नहीं आने वाला आपके साथ। तो प्रेफरेबली यूट्यूब या वीडियोस वगैरह कोई देखने का जरूरत नहीं है। अगर कभी भी चाहिए तो है वीडियोस, यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, रिविजन्स डाला हुआ है। बट उसके बाद को क्विकली कंसेप्ट ग्रास्प करना है चैप्टर का क्या है, कुछ क्वेश्चंस का ऑडिट करवाना है, कहाँ कहाँ गलती की, इसलिए अपना नोटबुक अच्छा होना चाहिए, नोटबुक का पेज नंबरिंग आपने किया होना चाहिए। वो नहीं है तो आपको आईसीआई का मॉड्यूल का क्वेश्चंस करना पड़ेगा। बट वो मॉड्यूल में क्वेश्चन सारे लॉजिकल सीक्वेंस में रहेंगे, इसका गारंटी नहीं है, सॉल्यूशंस कैसे रहेंगे मालूम नहीं। I'll go to the cost ledger accounting now. Thereafter 6 hours is enough. The main focus on cost ledger accounting is going to be on what? Reconciliation. Main focus has to be on reconciliation. Job costing, batch costing, 3 hours enough. Operating costing 5 hours enough for doing audit. So that is cost sheet था उसके अंदर. प्रोसेस कॉस्टिंग शुड बी 10 आवर्स, उसमें हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन देख के प्रोसेस का फॉर्मेट देख लिया मैंने, और इसमें कुछ कुछ टाइम आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करने को देना है। जेपीबीपी 5 आवर्स इनफ, एक ही मतलब मेथड से बस, बाकी कुछ था नहीं। एंड देन आई विल कम डाउन टू व्हाट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी 3 आवर्स इनफ, जो क्वेश्चन हमने किए वो देखना है। एंड देन आई विल कम डाउन टू व्हाट, इंट्रोडक्शन एंड कॉस्ट शीट 11, 12 and labor is 13 at oh, just a second, understood what happened, फॉर्मूला लगा के रखा था चैप्टर नंबर का, हाँ क्या नंबर था, एक्टिविटी 10, 11, 12 एंड व्हाट 13। इंट्रोडक्शन 5 आवर्स, इसमें थ्योरी है पूरा, इंट्रोडक्शन एंड कॉस्ट शीट, वो मीनिंग ऑफ सर्टन टर्म्स दिया हुआ, दो मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। मटेरियल लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 6 आवर्स, लेबर 5, मोर देन इनफ, एंड थियरी एट द एंड। वो थियरी का दिन, अब मैं टोटल आवर्स निकल रहा हूँ, थियरी आ गया मेरा 12 घंटे, पूरा दिन गया। सो दिस इज लाइक टोटल हाउ मेनी आवर्स, 96 clock hours are required for costing. 96 clock hours are required for costing. Thereafter we'll put the sheet. Have patience. मेरा mouse क्यों अटक गया? हाँ. Thereafter I'll go towards what? FM. यहाँ पर ही डालते थे, एक बाजू में डालते हैं, ठीक है? Here it comes. Again, these are max possible hours. For FM, you can go in the similar sequence. There is no problem for FM because कोई ऐसा irritating वाला नहीं. Introduction, time value of money, time value of money का brief में सिर्फ फॉर्मूला देख लिया. Introduction का कुछ theory pointers है, 2-3 theory questions है, सब कुछ देख लिया. 3 घंटे काफी है. Leverage 4 hours enough for preparation. Then capital structure 5 hours, क्योंकि उसमें बहुत सारे formulas है. मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड की जो थियरीज है वो नीचे रखी है, ये थियरीज है, डिविडेंड एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, एमएम अप्रोच, मोडिग्लियानी मिलर का नेट ऑपरेटिंग इनकम ड्यूरांड अप्रोच वगैरह था। सो कैपिटल स्ट्रक्चर अराउंड 5, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8, उसमें इरिटेशन बहुत है, कैपिटल बाइटिंग में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, रेशो अनदर 10 आवर्स, सारे फॉर्मूलाज देख के बैलेंस शीट ही बना रहे थे हम पूरे इसमें। डिविडेंड एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज अराउंड 8, मोडिग्लियानी मिलर अच्छे से करो, दोनों मोडिग्लियानी मिलर के वर्जन्स करो, आर्बिट्राज करो। सो एक एक पॉइंटर्स है, आफ्टर 2-3 days ना आई विल पुट अप वन शीट वेयर इन ईच चैप्टर व्हाट आर द मेन पॉइंटर्स टू लुक आउट फॉर। सो व्हेन यू स्टडी दैट रिस्पेक्टिव चैप्टर, वो जस्ट एक पीडीएफ शीट आपके टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। सो इन दैट पर्टिकुलर पीडीएफ शीट व्हाट एवर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आर देयर, इंश्योर दैट यू आर नॉट स्किप्ड इट। कैश बजट 2 hours, रिसीवेबल्स 6 hours, उसमें फैक्टरिंग है, फैक्टरिंग कुछ नहीं कर सकते। वर्किंग कैपिटल अनदर 6 hours, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अनदर 4 hours, दैट शुड बी इनफ। सोर्सेस में थियरी है, टोटल अराउंड 66 hours मैक्स। देन कम्स डाउन टू अकाउंट्स, लाइक
Accounts. Where the hell did it go? Accounts, number of chapters are too many. तो और सारे लोगों को मालूम भी नहीं है, तो इसलिए मैंने अकाउंट के जो है ना टॉपिक्स एंड सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है. Like I'll always kickstart with the biggies. In accounts, there are 7 chapters which come for almost 60 marks. Cash flow, buyback, amalgamation, reconstruction, schedule 3, branch accounts and AS21 consolidation. ये जो chapters है magnificent 7. These chapters require around 45-50 clock hours to prepare for completely, but can give you marks of around 60-65 marks. In the last 3 papers which have come up, they have come up average 60 marks. 60-65 marks आ चुके हैं. MCQs plus descriptive put together. Questions बड़े रहते हैं. कुछ हर चैप्टर, तो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन छोटा नहीं रहेगा. वो 14 मार्क का क्वेश्चन 8-10 ऐसे ही आते हैं. ROI सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा ROI मिलेगा. जो ने ग्रुप 1 किया है, बुक 1 था वो. बुक 1 प्लस कंसोलिडेशन एंड में था, लेकिन कंसोलिडेशन के लिए ब्रेन चाहिए था. वो चैप्टर सारे अच्छे से इज्जत से करके रखो. इन डिटेल वो चैप्टर्स पहले करना है. ये चैप्टर पहले कर दिए, देन आई गो टू द कंसोलिडेशन के रिमेनिंग चैप्टर, क्योंकि कंसोलिडेशन से रिलेटेड वाला चीज है. तो 23-27 एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स. सो जो 8 घंटे अभी आप ग्रुप 1 कर रहे हो 8 घंटे के लिए, और 4 घंटा आपका ग्रुप 2 है, तो 8 देन यू अलोकेट, टेक अप अ सब्जेक्ट, और 8 घंटे में यू कैन डिवाइड 3 सब्जेक्ट्स, ऑल द 3, और यू कैन मेक इट 2 hours अकाउंट, 2 hours DT, 2 hours लॉ, 2 hours GST. तो GST जल्दी खत्म हो जाएगा. जो चीज खत्म हो जाएगा, देन allocate hours to the other subject, or you can make it 3 hours accounts, 1 hour GST. Like GST छोटा है तो, but ensure that you study everything of each subject in a small chunk. Don't try to take a big chunk at a time. चलने दो वो स्लो स्पीड से, आराम से. अब इसके टोटल आवर्स इज अराउंड 94-95 hours. इट्स गुड इनफ. कॉस्टिंग के जो आवर्स है ना, यू कैन क्रैश डाउन further if required. 96 जो है ना, you can crash it down, बहुत जल्दी हो सकता है. I'll crash it down. Now let me calculate requirement of hours for all the subjects. बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर गाइडेंस नहीं दे सकता हूं, लेकिन ब्रॉड लेवल पे कितना आवर्स लगना चाहिए वो मैं बोलता हूं. ग्रुप 1, लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 1 फर्स्ट. सो लॉ, DT, GST, it can vary from student to student. Accounts 94, I would like to increase to 120. Law should also take 100 clock hours to study. है, study करने के लिए बहुत है. DT should take another 120 clock hours. GST should take 40 to 50 clock hours. Not more than that. 50 is सर के ऊपर का पानी. Total clock hours required for accounts group 1 आ गया इतने तुम्हारे. Let's talk about group 2, costing, FM, SM, audit. Costing, I'll drop it down to 80 to 100. Let's make it 90 average. FM 60 is enough. SM 35. Audit should be around 120. It's too many chapters in the syllabus. 305 clock hours to 310. Now let us see, is it possible? Now we are talking about May 2025 attempt. You will have lectures for the next 3-4 days maybe. So if I put up the statement of, let's say, month, days, hours per day, and total hours. This is total time required for revision. I am taking 100, like it's not that you will require this much time, you will require some lesser time. This is like a max possible time.
So in a February, you have 8 more days left, but you can't study for 12 hours because there will be lectures for few hours. I'm assuming you will study for just the 6 hours a day, right? You can increase 6 से ज़्यादा हो सकता है depending on how many hours your lectures go for. March, you have 31 days. April, you have 30 days. Right now, just to tick it up. And I take it 12. And I calculate total hours requirement of all the months. And required for both the groups is this 695 required. But this 695 is under the presumption that you have to study all the subjects, all the chapters in detail. Your position is not like that. Why? There is some degree of completion. When the group 1 was there, at that point of time, you would have already studied something of group 1. Group 2 के टाइम पे भी रिस्पेक्टिवली आपने कभी कभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया है आपने. लाइक कॉस्टिंग के जो आर्स हैं, बहुत कम आर्स लगेंगे आपको. दिस इज 90. I'm talking about what maximum possible hours. So if I take a degree of completion, DOC, or that is up to required का, I'm assuming 30% degree of completion on overall basis. कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा रहेगा, कुछ सब्जेक्ट में कम रहेगा. 30% तुम्हारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, तो मतलब roughly 200 hours का आपका थोड़ा प्रिपेयर. You will not require 695. This 695 is under the assumption that you have to study each and every chapter in the full depth. इतना टाइम लगने वाला ही नहीं. लेकिन ये जो आर्स लिखे 120, मैं अभी जो फास्ट ट्रैक ले रहा हूँ उसका टोटल आर्स विल बी अराउंड 94-95, इंक्लूडिंग बाय टीचिंग एवरी पॉइंट, एवरी कंसेप्ट विदाउट मिसिंग ऑन एनीथिंग. आराम से होता है. क्यों? व्हेन दैट इज बिकॉज दैट टाइम डज नॉट इन्वॉल्व अ टाइम ऑन Instagram, that time does not involve time on social media or anything else. I'm talking about these are productive hours. These are productive hours. Every student by student. So, surplus कितना रह गया मेरे पास? Surplus is total I have these many hours minus, ये ब्रैकेट में डालता हूँ, 695 minus 208. नहीं समझा. नेट रिक्वायर्ड निकालते पहले, कुछ बच्चों को समझा नहीं होगा. 695 का DOC ले लिया. स्पून फीडिंग वी डू. So at least last day तो basic बताओ नहीं तो. 487 hours are required. बच्चों, you have a surplus in terms of 780 minus 487. These many hours. Surplus days, अगर if I express in terms of days, 294 divided by 12 hours a day. So roughly you have 25 days of surplus of April. April month, obviously. You have a surplus of 25 days of entire April, which is okay. Why? You might have a BCom examination to come up in between. अरे क्या, जिनका मैं एग्जाम है उनके लिए, तेरे को सितंबर वाले जो बच्चे हैं, you will get some break right now between this group 2 and group 1 whenever it starts. You should not enjoy. You should revise your group 2. सेम मैंने ग्रुप 1 को भी, मैंने ग्रुप 1 जब खत्म किया था मैंने टाइम दिया था पढ़ने को, मैंने टाइम दिया था. बीच में भी मैंने टाइम दिया था अकाउंट्स को पढ़ने को. अब कुछ बच्चों ने फॉलो किया होगा, जिन्होंने उस टाइम पे पढ़ाई किया होगा, दे विल रिक्वायर. सी आज वो तुम भूल चुके हो, इट्स ओके. इट विल नॉट रिक्वायर टू मच ऑफ टाइम फॉर यू टू रिकलेक्ट. ग्रुप 1 में मैंने शायद 8-9 दिन अकाउंट्स के, 8-9 दिन नहीं, दिवाली, हाँ दिवाली था, दिवाली के एक्स्ट्रा, दिवाली का था. बट दिवाली चलो ना यार, कुछ तो तुमने घर पे पढ़ाई नहीं किया होगा. दिवाली में तुमने थोड़े दिन, दिवाली के 4-5 दिन तो तुमने पढ़ाई नहीं किया होगा. दैट इज एक्सेप्टेबल. अदर देन दिवाली, स्टिल यू हैड 7-8 मोर डेज, प्लस यू हैड 3-4 मोर डेज बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. अब जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए काम बहुत आसान है. If you are thinking right now to recollect, like I go to, let us say, I go to AS28 and I say, tell me something about a bottom-up test. All right.
tell you how do I account for reversal of impairment loss, or tell me how do I bifurcate the impairment loss between a cash generating unit and a corporate assets of the company and a goodwill. None of you will be able to recollect, and that is absolutely okay. It's नहीं होगा. सेम चीज मैं आपको बोलता हूं. Tell me how to calculate the cost of acquisition of a capital asset for the purpose of depreciation, and tell me all 11 explanations of section 43 subsection 1 of the Income Tax Act. You will not understand how do I calculate, but when you start reading the depreciation, you will understand कि ये points है. या मैं अभी आपको पूछता हूँ abruptly, tell me everything about section 56 sources, other sources of income. 56 में क्या क्या covered है, gifts के सारे provision मेरे को बोल दो. You will not be able to recollect and write in the exam format right now. Or I tell you, like, tell me something about a co-ownership of house property. Explain me about a co-ownership and the taxation of co-ownership. अभी याद आएगा? नहीं आएगा. I tell you, write a short note on the rules regarding charges. बिल्कुल याद नहीं आएगा. और याद नहीं भी आ रहा है. Absolutely okay. Absolutely okay. क्यों? जब वो बुक खोलोगे आप, बुक खोल के जब आप अदर सोर्सेस पढ़ना चालू करोगे, इंपेयरमेंट पढ़ना चालू करोगे या रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ना चालू करोगे, तब वो आराम से रिकलेक्शन होगा. एग्जाम इज नॉट अबाउट स्टडिंग समथिंग 3 months ago and going and reproducing it tomorrow or today. Exam is about studying today, tomorrow, 2 days and reproducing day after tomorrow. आपको क्या करना है अभी, ये जो 3-2.5 महीना जो भी है, ये 2.5 महीने में आपको पढ़ना है. 3 महीना जो भी जब जिस बैच को जैसे मिलेगा वो टाइम में आपको पढ़ना है एंड उसको अच्छे से समझ लेना है. और आखिरी 2 दिन में रिवाइज कर. आखिरी 2 दिन, उसके पहले भी आपके 25 दिन रिवीजन के लिए बाकी है. ये जो सरप्लस डेज है ना, इन दोज डेज यू विल हैव अ रिवीजन. यू विल हैव बीकॉम के कुछ पेपर 4-5 दिन जाएंगे उधर, 5-6 दिन जाएंगे जो भी. अगर बीकॉम मई के बाद आता है तो सबसे बढ़िया. आई डोंट थिंक विच विल हैपन. बीकॉम के लिए उतने दिन ही करो. सुनो पूरी बातें सुनो. बीकॉम के लिए उतने दिन ही आपको फेस करना पड़ेगा. चला जाएगा, रिवीजन होगा, कुछ टेस्ट आपको एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट लिखना पड़ेगा. 2 तो पॉसिबल नहीं है, टाइम ही नहीं है उतना. 2 पेपर लिखने के लिए 12 दिन लगेंगे आपको. 12 दिन बैक टू बैक भी 12 दिन लगेंगे. छुट्टी दिया तो फिर छोड़ ही दो, फिर बीकॉम भी नहीं लिख पाओगे. यू शुड राइट एटलीस्ट 1 पेपर अ सब्जेक्ट बिफोर एग्जाम. 1 एटलीस्ट, एटमोस्ट एक ही है. मई के लिए एक ही है. सितंबर के लिए अगर कुछ हुआ, ज्यादा टाइम मिला तो देखेंगे. सो बट दैट मच प्रिपरेशन इज इनफ. दैट मच दिस मच प्रिपरेशन इफ यू डू, इट इज वे मोर देन इनफ. वे मोर देन इनफ. क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना है, ये पीरियड में पढ़ना है, फिर बाद में रिवीजन करना है, और आपको सिर्फ वो कंटेंट 1.5 दिन या 2 दिन दिमाग में रखना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 दिन के बाद आपको जाके सिर्फ क्या करना है, उसको रिप्रोड्यूस करना और भूल जाना है. कौन से पेपर को ज्यादा छुट्टी इस बार? मई में कौन सा है? FM एंड SM. और स्ट्रेस कम हो गया. SM वाला जो पार्ट याद रखने वाला पार्ट है वो है, और उसके आखिरी पेपर FM SM में आखिरी पेपर है, तो कुछ अगला पेपर भी पढ़ के फायदा नहीं है. ठीक है ना? FM SM इज द लास्ट पेपर ना, पेपर 6 है ना. अगर वो कॉस्टिंग होता तो शायद आप थोड़ा बहुत ऑडिट पढ़ सकते थे. यू शुड हैव स्टडीड ऑडिट रादर देन द फुल कॉस्टिंग. बट ठीक है, FM SM है, टाइम अवेलेबल है, तो आपको FM SM का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है. क्यों जरूरत नहीं? उसका थियरी जो है आराम से ऑडिट के पेपर के बाद यू हैव इनफ टाइम अवेलेबल. एंड एग्जाम के जो डेज है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन रिड्यूस डाउन द स्लीप फॉर दोज 12 days to 6 hours a day. 6 hours a day is enough. अरे अभी भी तुम्हारा आदत वही है, एग्जाम के टाइम पे तो आराम से 6 hours होगा. सो इफ यू आर गोइंग टू थिंक, will I be able to complete my studies? Will I be able to go for the examination? And if you are just thinking, you won't pass. You won't pass. If you are going to think, will I be able to complete? ये डर अगर आपके दिमाग में ना, सीधा एक ग्रुप पे आओ. It's okay.
एक ग्रुप मई में, एक ग्रुप सितंबर में, एक ग्रुप सितंबर में, एक ग्रुप जनवरी में, जो भी. Then you come down to one group because there is that stress will not help you. But trust me, those who have enough degree of completion, they have completed all the lectures, notebook completed है, सब कुछ है. Can you finish the studies of both the groups? Answer is yes. Should you go for both the groups? Yes. Reason being, you get a set off. Remember, to pass this examination, there are just two out. How many marks you need? 300. Out of 300, imagine you get 2 subjects very nicely. It can be any 2 subjects. I can't predict in advance because कौन सा पेपर मुश्किल आएगा, कौन सा पेपर इजी आएगा. 2 पेपर 70 मार्क वाले मारने हैं. 70 वाले 2 मार दिए तो बैलेंस पेपर्स में आपको 40 ही लाना है बस. 160 बैलेंस 4 सब्जेक्ट. तो पर पेपर, आई एम नॉट सेइंग टारगेट 40. दिस इज इन जनरल. जिनको मेरिट में आना है उनका बात अलग है, उनके लिए स्ट्रेटेजी नहीं है. वो बच्चे का डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहेगा, तो उसका ग्रास्पिंग बहुत. सी देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक कॉस्टिंग, एफएम एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट अकाउंट्स एंड डीटी. ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्कोरिंग लगते हैं. डीटी बहुत स्कोरिंग है. मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डीटी इज, इफ यू कैन रिकलेक्ट, इट्स कैलकुलेशंस यार. डीटी जीएसटी में थ्योरी आता है तो इसलिए. ऑडिट वगैरह में वो चल थ्योरी का वो कितना क्या करेगा वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं. उसको एडवांस में अज्यूम करना गलत बात है. वो थ्योरी है, वो थ्योरी को कैसा मार्क देगा या कहां से उठा के डालेगा कौन सा क्वेश्चन, वो तुमको पता ही नहीं है. मतलब बहुत बार तुमको तो क्वेश्चन ही समझता नहीं कौन से चैप्टर का है, नहीं समझता. वो है, कुछ कर नहीं सकते उसको. बट दैट इज वेयर द बैलेंसिंग. बट वो पेपर इतना भी टफ नहीं रहेगा क्योंकि तुमको 12, 13, 15, 16 मार्क पे लाएगा. अगर तुमने पढ़ाई करके 40 का स्कोप रहेगा. क्यों? 30 मार्क के एमसीक्यू है सीधे सीधे. उसमें कुछ भी कर दे. एमसीक्यू में तो चैप्टर आपको समझे, अरे नीचे आंसर दिया है ना यार उसका, तेरे को सिर्फ सही आंसर कौन सा ढूंढना है. तो एमसीक्यू विल नॉट बी लाइक दी क्रेजी. एमसीक्यू में से तुम 25 तक जा सकता है, 20-25 मार सकता है. तुमको ये 70 में से 20-30 नैया पार लगानी बस. और ये उस टाइम पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक पेपर कोई ना कोई तो ग्रुप में ऐसा आएगा कि आपको अगले पेपर जाने का फीलिंग ही नहीं रहेगा. ट्रस्ट मी, यू विल बी डेवास्टेटेड. देयर विल बी वन पेपर इन ईच ग्रुप, यू विल गेट दिस फीलिंग ट्वाइस इन 12 days बैक टू बैक, गारंटीड. उसका मैं गारंटी पक्का देता हूं. और आपको इसका इफेक्ट भी दिखेगा. अगले दिन जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना, आपको क्वांटिटी कम होते दिखेगा. वो स्क्विड गेम चलता रहेगा बस. ऐसा एंड तक कौन बचता है ना, उसको प्राइज मनी मिलने वाला है बस. कंपटीशन कम हो जाएगा. आप उसको उल्टे तरीके से, तो बहुत सारे बच्चे 1 घंटे के बाद उठ के चले जाएंगे. 1 घंटा मिनिमम बैठना अलाउड होता है, रिक्वायर्ड है मेरे हिसाब से. हाँ कम, अच्छा 45 मिनट्स कर दिए इंस्टीट्यूट ने. 1 घंटे के बाद बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग सोएंगे. मेरे पास पूरा डेटा रहता है मार्क्स का. बच्चे का नाम वगैरह नहीं रहता, मार्क्स का डेटा. इफ आई एनालाइज दैट डेटा फॉर मल्टीपल ईयर्स, at least I'm telling you, 30 to 40% students who give the paper, they score below 30% marks. मतलब उनका एवरेज जो है सारे सब्जेक्ट का मिला के एवरेज 30% के नीचे. मतलब वो बच्चे ने प्रिपेयर ही नहीं किया है. तो तुम जो पासिंग परसेंटेज देखते हो और वो देख के जो तुम्हारे दिमाग में डर बैठता ना, वो डर पहले दिमाग से हटाओ. 30-40%, 100 में से 40 काम का ही नहीं है. काम का ही नहीं. आप एग्जाम हॉल में जाने का अटेंडेंस देखो ना यार. यू चेक आउट द अटेंडेंस ऑफ 6. काम नहीं तुम्हारा चेक करने का, बट इफ यू चेक इट विल कम टू नो 40% बच्चे का 60 में से 15-20 बच्चा अगर पास हो रहा है, इंडिविजुअल ग्रुप का, बोथ ग्रुप का 5-10 पास हो रहा है, इट्स नॉट अ बैड परसेंटेज. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आई नीड टू स्लॉग इन, आई नीड टू स्टे देयर to save the match. You require VVS Lakshman and Rahul Dravid innings of Kolkata 2001. Those who have watched that particular match. Test match था where India was losing. India had a follow-on था मेरे हिसाब से. India had done extremely bad. We had lost Sourav Ganguly, we had lost Sachin Tendulkar. We had already 4 wickets down. Lakshman and Dravid, opposite to Shane Warne, Glenn McGrath and Gillespie, Jason Gillespie था मेरे हिसाब से.
क्रेजी क्रेजी बॉलर्स, मतलब मैगरा का बॉल कहां से कहां जा रहा है उसके मतलब 7-8 वो स्लिप्स लगा था ऐसे, ऐसा ऑफ स्टंप, सारे 7-8 ऐसे प्लेयर्स ऑफ स्टंप के बाजू में, और एक पर्टिकुलर लाइन और लेंथ के साथ बॉल करता था। हिम्मत नहीं होता था किसी को बैट आगे लेके जाने का। दीज पीपल जस्ट डिड व्हाट, स्लॉगिंग इन, कुछ नहीं किया इन्होंने, कोई टेक्निकल शॉट पहले नहीं खेला, कोई ग्रेट नहीं खेला, फर्स्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे जस्ट स्टेड आउट देयर ऑन द विकेट टू टेस्ट एंड अंडरस्टैंड द पिच बैट्समैन। मतलब राहुल द्रविड़ ने 1 रन स्कोर किया तो लोग ताली बज रहे थे। द क्लैपिंग वॉज नॉट फॉर सेंचुरी, क्लैपिंग वॉज फॉर अ रन। इतने बोर कर दिया, एंड देन दिस फेलो, once they understood that particular thing, then they understood the ground and everything, then they started hitting and they changed around that entire, they played out for the whole day and turned the match upside down, made some follow on, उन्होंने cover up करके थोड़े रन बनाए दिए, and then came Harbhajan Singh, and Harbhajan Singh took a hat trick in my opinion out there in that particular match, because pitch, it was a 4th inning that Australia was playing, so luck also favors you, it was luck, sheer luck। वो विकेट जो हुआ था, विकेट में डैमेज ऑब्वियसली 5 दिन तक मैच चला, दैट टू इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस, विकेट डैमेज हो गया टू एन एक्सटेंट, एंड द बॉल स्टार्टेड टर्निंग अराउंड लाइक एनीथिंग ऑस्ट्रेलियन। गिलक्रिस्ट ऑल्सो, गिलक्रिस्ट वेंट आउट और डक, डेंजरस बैट्समैन गिलक्रिस्ट, हेडन था, मैथ्यू हेडन करके बंदा था, सारे डक डक डक, टर्न अराउंड एंड इंडिया वन दैट पर्टिकुलर मैच। एग्जैक्टली सिचुएशन इज गोइंग टू लाइक दिस, इट वाज दैट टफ कि किसी के बाप को लग नहीं रहा था कि मैच जीतेंगे। यू मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी इन दैट पर्टिकुलर, तुमको भी खुद नहीं लग रहा तुम में पास हो जाओगे, तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं लग रहा होगा, बट यू कुड बी नॉट एबल टू टर्न अराउंड इफ यू स्लॉग इन एंड स्टे देयर टिल 15th of May, और आई डोंट नो द 12th or 14th of May, 14th of May इज लास्ट पेपर, 14th May तक स्लॉगिंग करो, इतने सारे एफर्ट डाल दो। ये एफर्ट डालने के बाद भी वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है? फेल हो सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट फेल हो सकता है। क्या होगा? फेल होगा तो तुमको मार दिया जाएगा? नहीं, देयर इज अ ग्रेस। सी इफ यू आर गोइंग टू फॉल शॉर्ट, यू आर गोइंग टू फॉल शॉर्ट बाय फ्यू मार्क्स। वो फ्यू मार्क्स अगर एक आधे कोई पेपर में 5-6 मार्क का अगर फेलियर का डर है ना, वो डरो मत, वो ग्रेस मार्क्स से ऑटोमेटिकली कवर होता है हमेशा। हमेशा इंस्टीट्यूट कभी भी किसी भी बच्चे को ऐसा फेल नहीं करता है। वो परसेंटेजेस, तुम्हारा अगर परफॉर्मेंस ही बहुत ही बुरा, तुम अगर 25-30 पे आए तो फिर ग्रेस से नहीं मदद मिलता। तुम ऐसा बॉर्डर पे 38-39 है, एग्रीगेट हो रहा है, लेकिन एक आधे सब्जेक्ट की वजह से इंस्टीट्यूट अटक, मतलब नहीं है। 38-39 शुड बी विदाउट ग्रेस है। अब बच्चे क्या है ना, मेरे को बहुत सारे मार्क्स शीट दिखा, देखो सर ये 39 पे आके उसको फेल कर दिया। अरे नहीं, वो 39 जो मार्क्स है उसके ऑलरेडी आफ्टर एडिंग ग्रेस है। वो तुमको, तुम मार्कशीट देख के तुमको ये नहीं समझता, ग्रेस मार्कशीट देख के नहीं समझता। ग्रेस के लिए आपके पास आंसर शीट होना चाहिए और मार्कशीट होना चाहिए, देन यू अंडरस्टैंड ग्रेस मार्क्स। अब बेचारे तुम अगर बहुत ही नीचे 30 के नीचे, तो ग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। यू आर ऑन अ बॉर्डर लाइन एंड यू आर वरीड फॉर दैट बॉर्डर लाइन, क्योंकि दैट थिंकिंग विल हैपन बिकॉज ऑफ सम ऑफ द पेपर। एक आधा पेपर आपका जाएगा, कुड बी अकाउंट्स, कुड बी लॉ, कुड बी ऑडिट, कुड बी कॉस्टिंग। वो पेपर का अगले पेपर को जाने के लिए वही पेपर ही दिमाग में रहेगा, छोड़ दो उसको दिमाग से। 2-3 मार्क इंस्टीट्यूट देता है, उतना तुम्हारा मतलब है 2, 3, 4, 5 हर अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट। मैंने आपको परसों दिखाया अभी 23 ग्रेस मार्क्स है। अगर रिजल्ट बहुत ही बुरा आ रहा है, बहुत ही टफ पेपर निकले, तो ऑटोमेटिकली ग्रेस मार्क का परसेंटेज बढ़ेगा। अगर पेपर बहुत ही ईजी आए, ग्रेस मार्क्स कम हो जाएंगे। अब वो क्या है, वो प्रेडिक्ट करना ना मेरे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में। वो प्रेडिक्ट आईसीआई को भी, आईसीआई डज नॉट डिसाइड ग्रेस इन एडवांस, वो सब एंड में डिसाइड करते हैं। पूरा पेपर चेकिंग होता है, सब कुछ होता है, एक नंबर आता है, एंड देन दे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक एंड एवरीथिंग। एग्जाम कमेटी बैठती है, डिसाइड करती है, डिसीजन लेते हैं, बात खत्म। दैट्स इट। इट इज नॉट टू मेंटेन अ परसेंटेज और ग्रेस इज ऑलवेज एक्स्ट्रा। तो वो एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है। मेमोरी का जो आप स्ट्रेस ले रहे हो, वो मेमोरी का स्ट्रेस लेके फायदा नहीं है, बिकॉज 2 दिन में पेपर जाके याद रखना है, एंड जाके क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है। इट्स नॉट दैट टफ, and you will never have a feeling till the day of exam this is the best day for writing a paper. That best day will never ever come in your life. कभी भी नहीं लगेगा आपको अरे अब आज पेपर 1 में 2 कब चल 3 मई को चलो ना, 3 मई को आपको लगेगा नहीं कि पेपर में जाना चाहिए। आपको लगेगा यार 3 मई की जगह पे 15 मई होता तो अच्छा होता था, 30 में होता तो मैं निकाल लेता था, 30 मई को भी आया होता ना तो भी वही होता था।
आज तक इतने सारे एग्जाम्स जब जब एक एक महीना पोस्टपोन हुए इलेक्शंस की वजह से या कोविड की वजह से, रिजल्ट सबसे कम आया है। जितना ज्यादा टाइम मिला उतना रिजल्ट कम आता है। मेरे पास डेटा है पूरा। 2004 खोल के देखो, अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट था। 2009 मनमोहन सिंह, 2014 नरेंद्र मोदी, 2019 नरेंद्र मोदी, कोविड, 2020 का कोविड, और ये अभी लास्ट कोविड के बाद तो साइकिल ही पूरा मतलब बिगड़ गया है। 2024 का भी चलो थोड़े दिन इलेक्शन की वजह से होता, बहुत ज्यादा नहीं होता। 24 में इलेक्शंस के डेट ही चेंज हुए थे। आप सारे रिजल्ट्स 2004 से खोल के देखिए, क्योंकि 2004 में ये साइकिल चेंज हुआ, नहीं तो इलेक्शंस कभी भी मई में नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी हैड प्रीपोन्ड द इलेक्शंस एंड ड्यू टू विच द इलेक्शंस स्टार्टेड कमिंग इन बिटवीन, अदरवाइज द साइकिल वाज परफेक्ट। और देन कोविड ने साइकिल बिगाड़ दिया। हर बार का प्रूफ है। मतलब क्या है, तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है, उससे वजह से पास नहीं होने वाले, या मेरा टाइम कम है उसकी वजह से मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स अ मेंटल गेम। दीज 2.5 months, how steady, how calm and cool you can stay with the temperament of Rahul Dravid and VVS Lakshman. If you cannot manage that, then maybe professional examinations or competitive examinations, you are not able to handle that much of stress. Maybe you should reduce the stress by splitting the group. Let it be that. It's not necessarily कि हर कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हर कोई ये कर पाएगा। जो बच्चा नहीं कर पाए, आप आपका असेसमेंट करो यार। जस्ट बिकॉज आपने 2 ग्रुप के क्लासेस कर दिए है, ये कर दिए है, या बाकी दूसरा कोई 2 ग्रुप कर रहा है इसलिए मैं 2 ग्रुप कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आप आइडेंटिफाई करो, नहीं बनता मेरे से, चलो इट्स ओके यार, 1 स्टेप में बैक आता हूँ एंड देन प्रिपरेशन। वो कॉल आपको लेना पड़ेगा। दैट कॉल यू कैन नॉट टेक इन द मंथ ऑफ अप्रैल और इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। दैट कॉल यू हैव टू टेक नाउ बिफोर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म। व्हेनेवर द 1-2 हफ्ते में एग्जाम फॉर्म आना चाहिए। क्या 1 मार्च को एग्जाम फॉर्म चालू है? ओके। सो डिसीजंस लो। इट इज इनफ आवर्स अवेलेबल। आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो आप डिसाइड कर लो। इट्स क्वाइट पॉसिबल। एग्जाम इज नॉट गोना बी रॉकेट साइंस, एंड फॉर एवरी पेपर you have to have your own strategy of last 1.5 days or 2 days. कभी 2 मिलेगा, कभी 1.5। 1.5 अकाउंट्स को 3 दिन का बनाओ। 3 दिन में क्या क्या पढ़ना है, हर एक, जब आप रिवीजन कर रहे हैं ना अभी, हर एक चैप्टर में से, मैंने आपको ये पहले भी बोला था, इंडेक्स बना के रखो। हर एक चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो मेरे को देखने ही चाहिए, उसका लिस्ट बना के रखो। और वो तुम्हारा कस्टमाइज। आप बोलो ये तुम क्यों नहीं देते, मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड रहेगा। हर एक बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, इसको क्या समझा है, उसको क्या नहीं समझा है, वो तुमको तुम्हारा मालूम है ना। किसी एक को एक आधा चैप्टर बहुत आसान लग सकता है, मेरे को सारे चैप्टर आसान लगते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं बनाऊं, कोई फायदा नहीं ना। तुमको, मुझे कैश बजट बहुत आसान लगता है, या मुझे चलो वो कैपिटल बजटिंग भी अच्छा लगता है, मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इजी लगता है, तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाइट में हो सकता है। कुड भी ना, इट्स ओके ना। तो आप आपके हिसाब से कस्टमाइज करो ना। नाउ दिस टाइम टेबल यू शुड स्प्लिट इट डाउन नाउ। अगर ये करके भी आपका सिचुएशन बहुत खराब लग रहा है, आपको रिस्क लग रहा है, यू स्टिल हैव अ लिवरेज। 12 को आप 14 तक लेके जा सकते हो, मुश्किल नहीं है। इफ यू आर स्पेशली एट होम, यू डोंट हैव टू गो आउट फॉर अ मेस। कुछ बच्चे हैं जो घर पे नहीं जा सकते, पढ़ाई का माहौल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको मेस जाना पड़ेगा, तो टिफिन लगाओ, लाइब्रेरी लगाओ। तो जो बच्चे नहीं फॉलो कर सकते हैं, 14 घंटे आप देखो, दिन के 24 आवर्स है, सिंपल ब्रेक, स्लीप 7 hours। नो, यू शुड नॉट ब्रिंग इट बिलो 7 एट ऑल। It at your age, your body clock, your study and everything, 6 is not at all recommended. Very few cases you will be able to carry on with the 6. 7 is a decent number. See, I also don't sleep for 7 hours nowadays because it's a age. With age, it will come down and other factors. But given a choice, I would always love to sleep for minimum 7 to 8 hours. Minimum. Why? It helps you a lot. 7 hours, don't compromise. Personal activities, खाना पीना, नहाना धोना, 2 घंटे सर के ऊपर का पानी। क्या हंस रहे, तो धोता नहीं क्या? ह्यूमन बीइंग है ना, हंस रहे ऐसे। अपनी औकात दिखानी ही चाहिए। सो मतलब लास्ट लेक्चर में भी हम गाली खा के जाएंगे।
सो ऑब्वियस है ना यार, मतलब पर्सनल एक्टिविटीज को टाइम नहीं लगेगा, टट्टी नहीं करेगा तू। सो इट विल गो, ठीक है भाई तू कम टाइम करेगा, खुश। वो 2 घंटे ना मॉडल, उधर भी मॉडल लेके बैठ या चार्ट लेके बैठ, बाथरूम में चार्ट चिपका के रख, वही चार्ट देख। 2-4 दिन के बाद घर वाले तेरे को बाहर निकालेंगे, यार क्या यार टट्टी करते दिन में भी इसका चार्ट देखना पड़ रहा है। सो 2 घंटे चले गए, स्टिल यू हैव बैलेंस 15 आवर्स का तो नो। 15 घंटे आराम से पॉसिबल है, उस वैसे 14 घंटे छोटे छोटे ब्रेक लेके, ब्रेक 1 आवर, फोन हैज टू बी डिस्कनेक्टेड ओनली फॉर व्हाट, आपको कहीं पीडीएफ देखना है या कुछ रेफरेंसिंग करना, बस उसके लिए। दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली ग्रुप, कोई काम करे, दोस्त है वो सिर्फ ऐसा होना चाहिए जो निगेटिविटी ना फैलाए। मेरा इतना हो गया, तेरे को मालूम इतना हो गया, ये चैप्टर में ये है, ऐसे वाले दोस्त को ना पहला नंबर डिलीट कर दो और ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। ये ऐसे वाले दोस्त सबसे कमीने दोस्त होते हैं, उनका खुद कुछ हुआ नहीं रहता है, या हो गया है ना तो भी दूसरे को पिन लगाने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। ये मतलब वो पुरानी सास बहू की सीरियल वाली सास है ये। जो भी है ऐसे लोगों को ब्लॉक करो तो बिंदास, जो भी है उसको इज्जत से बोलने का, भाई एग्जाम के बाद बात करेंगे। या ब्लॉक का ऑप्शन रहेगा क्या, 1-2 बार ब्लॉक कर दिया, तीसरी बार उसको फोन नहीं लगेगा, उसको भी समझेगा ना। एंड नो चिट चैटिंग ऑन द फोन्स। जो तुमको एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट का सोर्स है ना, यू आइडेंटिफाई योर सोर्स, दैट कैन बी म्यूजिक, दैट कैन बी सम फिजिकल एक्टिविटी, दैट कैन बी चिट चैट विद द पेरेंट्स इन केस यू आर स्टेइंग विद द पेरेंट्स। कुछ हॉस्टलाइट से तो नहीं मिलेगा ऑप्शन, तो वो यू शुड फाइंड आउट समथिंग विच गिव्स यू दैट पर्टिकुलर किक, शॉर्ट 5 minutes एनी डिस्कशन, इट डज नॉट नीड टू बी अ एजेंडा बेस। ये कोई पीएम मोदी और ट्रम्प का मीटिंग नहीं है, एजेंडा लिख के रखा है और फिर चलो ट्रांसलेट करके बताओ। तो आप 14 घंटे बढ़ाओ, ये लिवरेज सबसे बड़ा है। अगर इमेजिन करो मैं यहां पर 14 करता हूं एंड दिस ऑल्सो आई इंक्रीज टू लेट्स से 7 hours, नहीं 7 से ज्यादा, 8 आराम से हो सकता है, लेक्चर का इतना टाइम थोड़ी रहेगा। यू गेट ए सरप्लस ऑफ 31 days, 1 full month का सरप्लस मिलता है। सो व्हाई डिड आई एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस? Is it possible to achieve both the groups? Big answer is yes. Possible to study and knock it off? Answer is yes, without any doubt. सेट ऑफ का फायदा मिलता है, बहुत बड़ा फायदा रहता है। 1-2 ग्रुप का साथ देने का सबसे बड़ा फायदा वही है, लेकिन आपको वो कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ साथ मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है, या तुम्हारा अभी बहुत सारे बच्चे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव, अभी तुम लेक्चर देख रहे हो और आज ऑलरेडी तारीख 15 मार्च है और तुम ये लेक्चर 15 मार्च को देख रहे हो और तुम प्लानिंग कर रहे हो, तो तुम स्ट्रेस में आओगे। हाँ नहीं है ना, कुछ कर नहीं सकते, इट्स ओके, वट एवर सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, तुमने ऑलरेडी बाकी कुछ सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के रखे होगे तो बात अलग है, लेकिन यू इवैल्यूएट अ सिचुएशन एंड देन टेक अ कॉल। वो कॉल आपका बहुत, इट्स अ जजमेंटल कॉल, आई एम नॉट पासिंग अ जजमेंट, यू डिसाइड। बोथ ग्रुप, 1 group choice is all yours. Do not go on the basis of what a teacher says. I said both, but don't go on my opinion. It is you that is more important. हर एक के घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे नहीं मालूम है। You could have multiple issues. Give due respect to those issues and then decide. If you have any questions on study related points, please shoot it up. I'll answer. Yes. Number of test series that you should appear for, minimum 1. Max depends on time. 2 के ऊपर तो मेरे को लगता नहीं कि पॉसिबल है। 1 टेस्ट सीरीज यू शुड गिव मिनिमम। एक पेपर अपने लिखना चाहिए, क्योंकि उससे ना एक साइकिल पूरा हो जाता है, लाइक एक बार पूरा पढ़ के हो जाता है। क्योंकि अगर साइकिल कंप्लीट, प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट सीरीज इफ यू हैव टू गिव 2 एंड दैट टू द ICA पैटर्न, like 1 day holiday pattern, you require 24 days. 1 round takes 12 days, 2 rounds will take 24 days, plus checking के लिए तो 5 दिन भी एक्स्ट्रा ऐड कर दो के 10 days more, 34 days.
So you will have to start a test series writing somewhere on 20 March या 15 March for 2 test series. Now imagine कर 20 March से तू 2 test series लिख रहा है, बहुत मुश्किल है क्योंकि तेरे पास टाइम ही नहीं ना उतना. वो कौन करता है? आप बोलोगे सर लेकिन बहुत सारे टेस्ट अर्ली सीरीज चालू था. वो जो बच्चा पिछले अटेम्प्ट में फेल हुआ था उसका प्रिपरेशन जल्दी चालू हो गया ना. He has to just revise. So for that student it is okay. Plus you will have some days of BCom. Those who are freshers. So one test is good enough. तो अगर हो पाया कुछ करके अच्छा. तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा 1, और बाकी ना टाइम और मिला ना just go through the papers ना. RTP, MTP just you should do the auditing of the papers rather than writing that full paper. एक पेपर फुल लिख लिया और बाकी बहुत सारे ऑडिट कर लिए. That will be better outcome than writing 2-3. सर आप मैराथन लेने वाले हो क्या? देख कॉस्टिंग के मैंने मैराथन लेक्चर्स फॉर्मेट में समथिंग अराउंड 24 to 30 क्लॉक आवर्स है ऑल चैप्टर्स. मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए. अकाउंट्स के कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है. तुम्हारे बैच में कुछ रिवीजन लिया था, कुछ बैच AS21, 23 तुम्हारे बैच में शेड्यूल 3 लिया था मैंने, बायबैक लिया था, कैश फ्लो लिया था, अमालगमेशन एंड कंसोलिडेशन के ऑल 3 दे आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब. कुछ मेरे चैनल पर रहेगा, कुछ एक पे रहेगा. यार किधर है वो प्लेलिस्ट बना के मार्केटिंग करना मेरे को नहीं आता यार. तुम तो बड़ा वो किधर ना किधर रहेगा. तो अकाउंट्स के कुछ चैप्टर्स है, FM के भी कुछ चैप्टर्स है, ऑलरेडी अवेलेबल है. तो अब अगर आपको देखना चाहते हो बेटा तो आप देख सकते हो. अकाउंट्स के और कुछ स्टैंडर्ड से तो मैं वो क्या फास्ट ट्रैक से उठा के डालूंगा, लेकिन वो आवर्स देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम है क्या? आंसर इज नो. यू डोंट हैव टाइम. वो सेल्फ स्टडी का जो ROI आएगा वो ज्यादा होगा एट द एंड ऑफ द डे. इफ यू आर गोइंग टू पास, प्लीज डोंट ट्रस्ट द व्हाट टीचर्स से. दैट इज अ मार्केटिंग मटेरियल. ये लेक्चर देख के मैं पास हो गया, अगर ये लेक्चर देख के मैं पास हो गया, ऐसा अगर सच होता ना तो आज रिजल्ट ये कोर्स का 20% नहीं होता यार. सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डू लेक्चर्स ना. तो जो देखो ये मैंने जो बोला मेरे प्रोफेशन के लिए गलत है. मेरे प्रोफेशनल पार्टनर्स या प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री के कलीग्स है कोई एग्री नहीं करेगा. आई डोंट केयर. जो है तुमने अगर मेरे को अगर थोड़ा बहुत भी तुमको अभिषेक जावरे समझाया आज तक, जो है ऑनेस्ट ओपिनियन देगा. मेरे कि 2-2.5 महीने तुम्हारे लिए रिलेवेंट है, उसके बाद भी तुमको लेक्चर देखना है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने डाले हुए हैं और तुमको डालने चाहे वो. दैट इज like it will be of use if it is very crisp, but for that crisp you should have studied it. The problem क्या है ना, तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो गया होता है, तुम 2 घंटे वो लेक्चर सुन रहे हो. The time that it takes to assess the concepts itself is too much. It is too much. So I will not recommend. If you still want, it's already there on the YouTube. If I think so that there is a need arises, I may upload some small pointers. मैं वो सोच रहा हूँ snippets करके ये rather than taking a whole chapter ना, ये मुश्किल वाला पॉइंट है उतना डाल दो, ऐसे छोटे छोटे with the angle of just cracking the exam. बोलो. Separate full syllabus test for FM and costing I can give you. I will upload the paper for full syllabus FM, accounts, costing. You write as per your convenience. I don't want to give you date, because if I give you date, you will come under stress. Because I will upload it. वो डाल दूंगा मैं, वो इधर तो डाल के आपको अपडेट कर दूंगा. Sir, what should be the strategy for second revision of the subjects like costing and accounts? Second revision बहुत कम टाइम देना चाहिए तुमने. You should give half भी नहीं, उससे भी कम. Like costing, when you do the first revision ना, at that time itself noting करके रखना ये चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट मेरे को देखने का है. बस वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखने हैं और क्या क्या सम्स मेरे को देखने हैं, वो मार्किंग आपने करना चाहिए. मैंने आपको एक इंडेक्स बोला था, इज इट टू बी इंक्लूडेड इन रिवीजन. इंडेक्स बनाओ या उधर के उधर अलग हाइलाइटर लो या अलग कलर का पेन लो या कुछ कोडिंग करके रखो, वट एवर इज योर स्ट्रैटेजी, उतना तुम लिखो. सेकंड रिवीजन के लिए आर्स शुड बी, जो फर्स्ट रिवीजन है ना उसका डायरेक्ट सीधा सीधा 25%, सीधा सीधा 25%. सर सेल्फ डाउट आते रहता है सर.
कि ये लेसन पढ़ा है उसमें उस पे 4-5 दिन बाद डाउट आता है, व्हाट इफ आई डोंट रिमेंबर। ये डाउट हमेशा आते रहेगा, स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट। हाँ, आते रहेगा, क्योंकि तुम वापस वही मिस्टेक कर रहे हो जो मेजॉरिटी पब्लिक करता है। यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर थियरी सब्जेक्ट्स, डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर। आप अच्छे से उसको समझ लो। आखिरी के जो 2 दिन है, 2 दिन में आपको उतने सारे पेजेस पढ़ने का स्पीड और कैपेबिलिटी चाहिए। देखो सिंपल, एनी पेपर यू गेट क्लीन टू क्लीन अबाउट 20 क्लॉक आवर्स। देखो सिंपल लॉजिक है, आपका पिछला पेपर खत्म हो गया 5 बजे, you go home 6 o'clock. So day of last paper, how many hours you get? 6 o'clock you go home. Assume 6 o'clock you start studies till 11 o'clock, 5 hours. 11 o'clock you go to the bed. Next day morning 6 o'clock you wake up. 6 hours of sleep. 1 hour gone in other activities. 7 o'clock. Next day holiday का दिन है. 7 से 12 बजे तक आप पढ़ लिए 5 घंटे. 12 से एक ब्रेक ले लिया वापस आपने, सपोज अज्यूम करो. 1 से वापस आप शाम के 8 बजे तक पढ़ लिए 7 घंटे. पेपर के टाइम पे तो कोई ब्रेक टाइम पास नहीं होना चाहिए. 8 से रात के डिनर के लिए 1 घंटा छोड़ दिया 9 बजे तक. 9 से वापस रात के बेड को जाने के लिए 2 घंटा. तो हॉलीडे का पूरा दिन 14 घंटे आप आराम से पढ़ लिए. अगले दिन पेपर डे. पेपर डे को आपको कितना टाइम मिल रहा है? पेपर डे मॉर्निंग 5 बजे वापस उठ गए, 6 बजे चालू किया, 6 से 12 6 घंटे मिलते हैं. 6 से 12 या जिसका डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, किसी को 6 घंटा मिलेगा, किसी को 7 घंटा मिलेगा. एग्जाम हॉल का और आपका डिस्टेंस कितना है? 6 घंटे पकड़ के चलो. हाउ मेनी आवर्स यू गॉट? 25 क्लॉक आवर्स. 24 ले लो आप. नाउ रुद्रेश, if you have got a proper marking of what to read, how many pages you can read in 25 hours? Pages for 25 hours. Simple है. A standard run rate is around 10 pages per hour. Easily. Exam के time पे वो 10 का, you should like A4 के 10 pages easily capable of being read in 1 clock hour, 10 to 12. अगर कंटेंट बहुत आसान है तो 12 तक जाओगे. कंटेंट हेवी है थोड़ा सा तो 10 घंटे लगेगा. अगर मैं 12 का स्ट्राइक रेट या 13 का स्ट्राइक रेट पकड़ू, यू कैन रीड अराउंड 300 पेजेस इन लास्ट 24 days, 24 hours. 325 पेजेस आपने अगर वो पढ़ लिया, व्हाई विल यू फॉरगेट? अगर आपने पहले पढ़ा है और पहले अच्छे से समझा है. ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकल के लिए कुछ आता नहीं. प्रैक्टिकल के लिए इतने पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं होता है. प्रैक्टिकल ये सिर्फ लॉ, ऑडिट, जीएसटी, एसएम उधर आएगा. कॉस्टिंग अकाउंट्स उसके लिए वो ये प्रॉब्लम नहीं. उधर तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो डर मत, तू सेल्फ डाउट कर मत. वो इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग अगर रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला. कैन आई स्टार्ट फॉर मे एग्जाम नाउ? ऑब्वियसली, मतलब इफ यू आर थिंकिंग ऑफ लेक्चर्स नाउ, नो. इफ योर ऑल लेक्चर्स आर डन एंड यू आर थिंकिंग अबाउट प्रिपरेशन, देन ओमप्रीत, yes, then you can think of. कौन सा मैं पूछ रहा है क्या? नहीं. और बोलो मैडम, क्या बोले? स्पीड का दिक्कत मतलब किस में? थियरी वाले में या न्यूमेरिकल में? न्यूमेरिकल में स्पीड का दिक्कत होता है. टाइमर, एग्जाम में टाइमर लगाओ, उतना वॉच लेके जाओ. डिजिटल वॉच तो अलाउड नहीं है, लेकिन वो मिनट्स टाइमर लगा. सो एग्जाम में अगर आपको टाइमर का दिक्कत है, पहले 15-20 मिनट में ना लेंथी क्वेश्चंस बाजू हटाओ, सीक्वेंसिंग करो प्रॉपर से. पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर 10 मार्क का क्वेश्चन यू शुड टेक 18 मिनट्स, बट एक्चुअली इट रिक्वायर्स 14-15 ऑल्सो, एंड देयर विल सम 10 मार्क क्वेश्चंस वेयर इट रिक्वायर 22 मिनट्स. तो पहले ये जजमेंट ले लो, नंबर 1. नंबर 2, टाइमिंग का तुमको अगर स्पीड मैनेज करना है ना, कुछ वर्किंग नोट्स नीचे करने के अलावा उधर के उधर ही वर्किंग दिखाओ. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग ना, ओवरऑल आंसर, जब से हमने क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे ना, वी यूज्ड टू डिस्कस अ क्वेश्चन एंड ओवरऑल आंसर का एक बार प्लानिंग करते थे. तो दिमाग में वो प्लानिंग करते जाओ. और वर्किंग नोट्स अलग से देख, वर्किंग नोट्स के लिए मार्क्स होते हैं, प्रेफरेबली अलग से लिखना चाहिए, आइडियल कंडीशन है. लेकिन पेपर के अंदर मेरे पास टाइम नहीं, तो नीचे लिखने का ऊपर लिखा. साइको एग्जामिनर है, मार्क काटेगा एक आधा, पूरा नहीं काटेगा, एक आधा मार्क इसने ये नहीं लिखा काटेगा. लेकिन
genuinely about, I'll tell you, 90-95% of the examiners will still give you marks full. Even though you are written the working there and there, you should write the working. That is important. So working लिख, पहले आंसर प्लान कर, टाइम सेव हो जाएगा प्रैक्टिकल के लिए. थियरी के लिए यार वो कितने लेंथी वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पूछते हैं, और तुम्हारा राइटिंग स्पीड. थियरी के लिए तुम्हारा राइटिंग स्पीड मैटर करेगा. और पेपर सीए एग्जाम्स में कभी भी ऐसे नहीं होगे जो 3 घंटे का पेपर है 2.5 घंटे में खत्म होगा. इम्पॉसिबल. बीकॉम में कैसा 3 घंटे का पेपर तुम्हारा 1.5 घंटे में भी खत्म हो सकता है. 1 आवर. तो ये सीए में कभी नहीं होने वाला. तो पहले तुम क्या सोच रहे ना, तुमको आदत लग चुकी है स्कूल की, पेपर आराम से कंप्लीट करने का, टीचर ने बोला फिर लाइन मारने का, फिर एक एक पेपर ऐसा चेंज करने का. ये भूल ही जाओ तुम. पॉसिबल ही नहीं है. दैट इज द इजीएस्ट वे फॉर द इंस्टीट्यूट. सी, अगर पेपर इजी आ गया, कंसेप्ट अंदर इजी है, इट विल बी ऑलवेज लेंथी. तो डोंट इवन डाउट. सर अटेम्प्ट सितंबर में है, ऑडिट में 3 मंथ्स का ब्रेक पड़ेगा, तो कंसेप्ट रिकलेक्ट हो गए, तो अभी पढ़ लेना खुद का. थ्योरी सब्जेक्ट के लिए इट इज ऑलवेज बेटर टू रीड ऑन योर ओन एंड मेक योर ओन बुक ऑफ हाइलाइट्स. योर ओन बुक ऑफ हाइलाइट्स या ओन समरी नोट्स जो आप निकाल के रखोगे, ओन पॉइंटर्स लिख के रखोगे, पॉइंटर्स, दैट विल ऑलवेज गिव यू द मोर बेनिफिट दैन रीडिंग टीचर्स नोट्स. खुद पॉइंटर्स लिख के रखना तू तेरे हिसाब से. जो तेरे को समरी बुक मिला है, वो समरी बुक में से पॉइंटर खुद लिख के रख, ऑटोमेटिकली रिकलेक्ट होता है. सर ग्रुप 2 के बाद स्ट्रेटेजी फॉर दोज अपेयरिंग इन सितंबर. हाँ, दोज हु आर अपेयरिंग इन सितंबर 2025 you will get some break obviously. कितना दिन का नहीं मालूम मेरे को. फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद अगला ग्रुप 1 चालू होगा. तो कब चालू होगा आई डोंट नो. डेट आई can't predict. Should be first week of the March or don't know when it will start. So whatever break you have, in that break revise group 2 properly. Group 2 proper revise करके रखो. कॉस्टिंग एफएम सबसे आसान है रिवीजन खत्म करने के लिए. कॉस्टिंग एफएम ले लो, पूरा खत्म कर लो, उसके साथ एसएम जोड़ो. छोटा है, ऑडिट लोगों तो खत्म होने का टाइम लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है. तो यू शुड फिनिश अप समथिंग एट लीस्ट. सर व्हाट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स? आई recommend at least 3 subjects a day. You should not go for a subject a day, क्योंकि a subject a day करोगे ना, efficiency कम होता है. हमेशा efficiency कम होता है. You feel like dragged down. वो खत्म ही नहीं होता. और उसमें एक हाथ 2 दिन. हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, कहीं एक आधे क्वेश्चन पे स्टक हो गए या कहीं पे स्टक हो गए, डोंट वेट फॉर टू मच ऑफ टाइम, जस्ट स्किप इट एंड गो अहेड. अटक गए ना एक आधे दिन कंसेप्ट पे, एक आधे प्रॉब्लम पे, छोड़ दो यार उसको. प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन कमिंग इज वेरी लेस. एक आध 2 क्वेश्चन पे हो जाएगा आपका. पढ़ाई करते करते बहुत यार कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से आया. थ्योरी में नहीं होता ऐसे. हाँ, थ्योरी में वही रखता है कि बहुत टाइम तक यही पेज पे हूं मैं, पेज ही आगे नहीं जा रहा है, साला यही पेज क्यों आ रहा है. ऑडिट में होता है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा. यू हाउ टू ग्रैब इंपॉर्टेंट. थ्योरी में आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं. अभी जो भी आपका मे का पेपर है ना, जस्ट बिफोर मे के पेपर, जनवरी का जो पेपर हुआ था, जनवरी के पेपर में क्या क्वेश्चंस आए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस पहले चेक करो. वो टॉपिक के ऊपर का क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी हार्डली 10% है. कम से कम 50 पेजेस रीड करने का तुम्हारा पर सब्जेक्ट सेव हो जाता है. लॉ उठाया मैंने, ऑडिट उठाया, एसएम उठाया, जो क्वेश्चन, क्यों इंस्टीट्यूट को मालूम है 80% बच्चा रिपीट होने वाला है. 80% बच्चा जब रिपीट होता है तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते. थ्योरी पे, न्यूमेरिकल्स में होता है, क्योंकि कुछ भी करो वो सेम क्वेश्चन वापस दे दो भी गलती करता है बच्चा. न्यूमेरिकल में 20 साल तक वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तभी बच्चे फेल हो रहे हैं. थियरी में क्या होता है, वो जो बच्चा फेल हो गया वो प्रॉपर सजेस्टेड आंसर्स देख के जाता है, वो सजेस्टेड आंसर पूरा देख के जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वो पास हो जाता है. सर व्हाइल डूइंग अ सेल्फ स्टडी फॉर कॉस्टिंग एंड एफएम, शुड वी सॉल्व और ऑडिट द सम्स. कुछ सम्स का ऑडिट करना है आपको और कुछ सम्स को सॉल्व करके देखना है. यू मे नॉट प्रेजेंट इट प्रॉपरली, बट बेसिक आप कर लो. चलो लास्ट few minutes. Now this may sound
boring for majority people, or you may not be able to relate very easily to what it is. These are not the lessons or pointers I'm telling you for the exam, not at all. Just 4-5 pointers मैंने आइडेंटिफाई करके लिखे हैं. These are the lessons which will help you a lot in your life little later. You will reach that particular stage of life for sure at a certain point of time, but to reach that level you need to understand certain basic lessons. These are not any rocket science lessons. This is what I understood. First, very important, money is gonna give you just the freedom of your time. It won't give you happiness at all. If you are going to look out for happiness, because you all are going to keep on chasing the money after completing this particular course, which I believe you want, and you are not wrong while making the money. But in that entire process, if you just become extremely money minded and you are just looking at that money, and you are starting to measure everything in terms of मनी, अरे यार ये 2 घंटे मैंने मेरे दोस्तों के साथ दे दिए, या 2 घंटे मैंने मूवी देखा तो मेरा इतना लॉस हो जाएगा, इतना मेरा टाइम चला गया, मेरा टाइम का वैल्यू माई इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, रेट पर आवर इनटू दिस. Because today you are earning nothing. Today, sir, today money is not there, sir. So today this point itself does not apply to any one of you. It will start getting applied, and then I have seen lot of people just keep on chasing that forever, for a very, very long period of time, and they don't understand. They just get up into that rotten up race, and they can't find, like I told you, like I'm gonna take a break this September. I'm just अगले 2-3 महीने में कुछ सिखाऊंगा मैं कैसे क्या. I'll figure it out. जैसे date आता है, I'm not sure about a date. Why? Because I told you this particular format in which this education is going on, I am genuinely not happy about it. I don't feel happy. Happiness मुझे मिलना चाहिए, पैसा मिलता है obviously, but that money can't buy me happiness. What money is giving me is the freedom of that particular time. I can disappear from here and still my life will be set. But what will I do? There has to be impact, there has to be happiness. So I want to change, so I want to figure it out. I want to go back to the drawing table and just figure out what changes I need to make to myself. Because if I'm not able to change the students, like Abhi Abdullah at the break mein bola, sir, aap change mat hona, sir. But unfortunately, if the students community is not changing, I need to figure out. I'll not change myself from the core, but there will be some fillers that I will have to add up, and I'll have to train my mind first to not get irritated by looking at the students who are of the ignorant. But I need to change, so I need to find out that particular time so that I'll get happiness. It's not that I'm not happy, but जो पोटेंशियल है ना ये टीचिंग से, जो हैप्पीनेस आने का या कुछ करने का, वो ट्रिमेंडस है, ट्रिमेंडस. लाइक आई हैव टेकन लेक्चर्स राइट फ्रॉम 6:30 और 6 o'clock in the morning. Initial days 6 o'clock, then 6:30 PCC बंद हो गया. Initial 2 years was PCC, then IPCC आ गया. IPCC आने के बाद 6:30 मॉर्निंग चालू हुआ था फाइनल के टाइम पे. 6:30 मॉर्निंग till 9 o'clock in the evening. I don't remember eating out at home till COVID struck from 2007. Non-stop. I don't remember like going on a holiday or taking a long travels like this. No, because that happiness I was able to extract from the work itself. Money was there, okay. Money will be there. Everyone will keep on earning different amount of money as per what profession you choose. But happiness is not linked to this money. And if you are going to link your happiness or success on the basis of the quantum of money that you have made, you are not understood a life at all. You are not understood anything. So you have a journey ahead of you after articleship or your degree. वो period में ना जो भी decisions आप ले रहे हैं ना, just ensure that there is a proper harmony between the money that you will be earning from that activity and your happiness. And if there will be certain activities that you will have to do which will not give you happiness, which will just give you money, try to bring the fusion of happiness. Like
teaching, frankly, it is giving me much more money, but जो quotient है happiness को नहीं मिल रहा, तो I have to change something and figure out how do I change, because I not come into the teaching profession to make a money. That was not my conscious decision. It was basically to change and carry out with a particular vision. It was not that I could not do anything else in the life. That's why I came to teaching. Because there are many people who just look out teaching as a source of M vitamin. No, it should not be like whatever. I can't do anything. That's why I'm choosing this. So are you happy with it? Yes, I was. Will I be? Yes. Can I transform? Yes. Many students, and there were a lot of students who would have seen from day one till now, and their mind would have changed. There are a lot of students at the same time who would not have changed. So how do I figure out those people? And that's where happiness comes in. So look out for that particular happiness. You will earn enough money. You will get a freedom of time, but then also enjoy that you live on that particular freedom also. This second point is very important to your generation. Very, very important. Mark this on your mind clearly. Success is to be defined or redefined by you and not by people around you. You are going to judge your definition of success by looking at what your colleagues have done, what your friends have done. और यार उसके पास तो ये कार है, इसके पास तो अच्छी बीवी है, अच्छा हस्बैंड है, इसके पास अच्छा घर है, या इसके पास अच्छे मार्क्स है, इसका बहुत अच्छे से पढ़ाई हो गया है. Why the hell are you benchmarking with someone else? Let it be na yaar. You define your own benchmark. That benchmark you should be rational while deciding it. नहीं तो तुम benchmark दे सर मेरे को 45 लाना है, सर मेरा benchmark की 20,000 रुपया per month. I'm happy sir. benchmark की बहुत कम रख रहे हो यार. 20,000 में कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया में अभी. लोग जीते हैं लेकिन after doing a CA course, if that is your objective, that is not going to help. So you have to define your own definition of success rather by other. It's a personal formula. किसी और का सक्सेस का डेफिनेशन, किसी और ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत अच्छे किया, उसका सक्सेस का डेफिनेशन नॉट बी एप्लीकेबल टू यू. यू माइट बी सिटिंग ऑन द डायबिटीज आउट देयर, or you might be sitting on some kind of a deadly disease, or you might be having some lot of trouble in his personal life. You might not have given time to kids when the kids are growing, and that's why kids are not respecting him. Or he might have beaten his wife, or wife might have beaten husband, or whatever it could be. He might be a great fellow in front of the world, but at the back end there is nothing. So don't define the success by what others are. There are n number of stories that you will find out, और ये कितना successful आदमी, कितना पैसा है, सब कुछ है, but you don't know the complete story. There is lot of loopholes or the loose ends that will be there at the back. So you do not decide your success by comparing with anyone else. Having idols is okay, having benchmarks is okay, having thinking is okay, but judging yourself based on someone else, it is not going to be possible at all. And that if you start doing this by comparing with, see, you might not compare yourself with Ambani or Mr. Modi or let's say Satya Nadella or let's say Steve Jobs or Donald Trump or Musk. You might not compare them. You will compare with whom? Your relatives, your friends, your colleagues, or the people working in the office, and that jealousy and everything else will start coming in, because you are a human being. If it does not, you are not human being. It will start coming in. It is quite natural. Quite natural. तुम आर्टिकलशिप पे जाओगे, तुम बहुत अच्छा काम करोगे, लेकिन तुम्हारा बॉस किसी और को ही प्रेफर कर रहा है, किसी और को ही प्रेज कर रहा है, तुमको प्रेज ही नहीं कर रहा है. सर मैंने इतनी बार पीडीएफ भेजा, मेरा पीडीएफ को तुमने लिया ही नहीं सर. तुमने सुबह का ही पीडीएफ लिया सर. You might feel like that way. Let it be. Why are you deciding on the basis of that? Why are you deciding yourself based on that? ये नहीं ना. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं ना, तुम आर्टिकलशिप पे जाओगे, अगले 2 महीने में तुम ये फेस करना चालू करोगे, एंड यू विल गेट जेलस, यू विल गेट एंग्री. ठीक है ना यार, उस होगा व्हाटएवर फैक्टर इट कुड बी. जस्ट इग्नोर दैट. And what is success will change. Like at this age, success will be defined by marks right now. Little later, marks will become absolutely irrelevant. After few years of your life, nobody is going to ask you about your mark sheet. No one is going to care about marks. So definition of success will keep on changing. So keep on evolving and keep on finding your true self. Relationships, very important again. Not the type of relationships that you are thinking. I'm not talking about that girlfriend boyfriend wala relationship. That
it's your personal choice. I'm talking about a business relationship or relationships of friendship or relationship of trust where you can share something without thinking about consequences or what will be the ramifications of this, if you can understand English. Don't, you should have those relations. You how to nurture those relationships. You need to give a time, you need to be present there, you need to take efforts. Relationship won't develop by just wishing happy birthday on a WhatsApp और सब ग्रुप के अंदर ऊपर किसने मैसेज लिखा वही कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो तुम. Relationship won't be developed like that. And don't try to find out a monetary benefit or a value in every relationship. I have seen lot of people around like you who try to, okay, इससे अभी मेरे को वैल्यू दिख रहा है ना, let me maintain a good relationship with him because I find a value with him, because he's valuable or he is important or he has a lot of money which I can extract or I can get some kind of a quid pro quo or he is some politician. So people try to differentiate कि इसके पास बहुत है तो इसको ये अभी इंपॉर्टेंस हो, अभी कुछ नहीं है इसको इंपॉर्टेंस मत दो, बाद में अच्छा कुछ मिल गया तो अभी इसको इंपॉर्टेंस देना चालू करो. रिलेशनशिप बिल्ड, डोंट ट्राई. रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू टेक बाय कॉन्शियस एफर्ट्स लाइक दिस. It should be natural where minds match. Ensure and nurture those relationships. It could be friends, it could be your bosses that you will meet in articleship or organizations or colleagues or field people from different background. This is another very important lesson for your personal life. If you want to grow in your life, the growth will always come from discomfort that you will have to carry. That discomfort could be for long hours that you might have to work, or work in a field or area where you don't have a knowledge. Like if you want to grow, entire CA course, you will get a technical knowledge of accounting, finance, taxation, auditing. Your growth will not come from any of them. Your growth will come when you learn everything about technology and management. Strategic management, that is not a management. That is short note. You also know it. Yeah, accounting जो सीखा आपने, account, you are not learned financial statements analysis or anything from that point of view. Your real growth will come from the areas which you will have to study here in after, and which is going to be discomforting for a majority of you, because आप सोचोगे यार सारा डिग्री मैंने क्रैक कर लिया, अभी भी मेरे को पढ़ना पड़ रहा है. That is a discomfort. मेरे को मूवी देखने का है, मेरे को क्रिकेट मैच देखने का है, मेरे को ये देखने का, वो देखने का नहीं. Those will be the initial years, 22, 23, you will crack. 21 or 22 you will become CA. 20 वो अभी CA फाइनल के एग्जाम के बाद कुछ 21 हो जाएंगे, कुछ 22 हो जाएंगे, कुछ 23, कुछ अटेम्प्ट लेके 24, जो भी है. whenever you become CA, at that particular point of time, 4 or 5 years, those will be very crucial years of your life for growth. But at that point of time does not mean that you ignore relationships or you ignore your happiness pointers. You should keep on filling it on a regular basis, but this you will have to put yourself in a discomfortable position. Like you don't want to travel, or you don't want a different kind of food, or you don't want to let's say go with males. Don't want to, males so obviously they will be interested in the girls, idiots. But girls maybe like I don't want to go for audit with the males, मेरे घर वाले नहीं भेजते. You will never get exposure. There could be, you will have to try and explain them politely, boss, this is not what you are thinking, this is audit. Because for auditing, like you will get a outstation audit, very simple, 5-6 months down the line you will get a outstation audit requirement. Sir, मैं लड़की हूँ, मेरे को भेज नहीं रहे. You will have to explain that is a, you will be in a position of discomfort. Obviously it is going to happen, but initial few times it will, that discomfort will kick in, and when you take it, then only the door of opportunity will open for you. Like there are so many students, in spite of having resources and everything, they don't move out of their village or their town for looking for a better opportunities, because there may not be better opportunities at that particular place. They want it to be their comforting positions at home and watch lectures on a pen drive or Google Drive. They are not putting like कहीं और जाऊं, कहीं और दोस्त बनाऊं, मेस में खाऊं, हॉस्टल में रुकूं, कपड़े खुद धोना सीखूं. करते हैं ना मेस वाले जो बच्चे, करना पड़ता है. हर किसी को कोई लॉन्ड्री का सर्विस का ऑप्शन नहीं मिलता, उतना पैसा नहीं है हर किसी के पास. हमने भी कब, मतलब हम तो कैसे होने तक काम किया यार खुद. तो वो डिस्कंफर्ट वाले पोजीशन में अगर नहीं डालोगे, आज आपके पास कंफर्ट वाला ऑप्शन है, घर पे बैठ के लेक्चर देखने का ऑप्शन है. चलो कुछ बच्चों के पास यहाँ आने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, मनी वाइज एवरीथिंग, बट दे डोंट वांट टू
put themselves into a discomforting position to go at other place and learn something new about new culture, new friends, new food style, new city. It may not be great city, but it might be something different experience than your own village or hometown. जहां पर अगर opportunity नहीं है, try and grab something different. So, and the last one, your time is gonna be your real wealth. Do not waste the time on frivolous activities. If anything gives you pleasure, like talking to friends, movies, and everything, that is okay. But just endless scrolling and without any aim, without anything, just doing nothing, irritating, no reading, nothing. वो जो भी तुम करते हो आजकल, I don't know. हाँ, तुम दोस्तों के साथ बैठे हो, कुछ तुम फिजिकल क्रिकेट का गेम खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, दैट इज ओके. तुम्हारा हाथ पैर टूटता है, इट्स ओके. That's okay, na? At least you are doing something productive. You are building on relationship. You are building on a physical capabilities. But that rest of the time, I keep on seeing the people endless scrolling karte rehte yaar. That's the time is your real wealth. I'll watch this later. I will see this, bookmark this. I will do this later. That later never ever going to come in your life back again. So these basic principles, if you follow, na, you would somewhere at the end of the day, over the years, you will start improving as a human being. Majority of you may not be able to reach. Some of you will take a time to reach to that level. It's okay. But the course, whatever balance course is left, intermediate exam and the CA final, you have to find out the reason of doing a course and you have to find out a happiness source. And अगर नहीं मिल रहा है आपको, या आपको लग रहा है कि यार मेरा कैपेबिलिटी नहीं है, it's always better to take a harmful or a discomforting decision right now. Like मेरे को CA ड्रॉप करना है, मेरे को दूसरा कुछ करना है. हो सकते बच्चे, बहुत सारे बच्चे वो डिसीजन ही नहीं ले पाते. वो 3 Idiot वाला जो कैरेक्टर था ना, वो नहीं, वो जो फोटोग्राफ वाला फरहान, हाँ, वो फरहान जैसे रहता है यार. वो CA नहीं करना है तेरे को, मत करना. पापा ने, अब्बा नहीं माने. अरे अब्बा का क्या सुन रहा है तू? अब्बा नहीं माने, वो गया जमाना. वो अब्बा, like, Papa, you explain them politely. Don't be arrogant. Explain them politely. But कोर्स के अंदर प्रॉब्लम्स है क्या है, बोलने वाला मैं ही तुमको. नहीं बोल, तुम तो ऐसे सपने में रहते थे, तुम तो फालतू के ड्रीम देख ले होते. कोर्स में प्रॉब्लम है. कोर्स में अच्छाइयाँ है. नेट क्या है? अच्छाइयाँ है. और ये प्रॉब्लम तुम इधर से दूसरे की जगह, दूसरे जगह प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? लेकिन हाँ, तुमको पसंद ही नहीं आ रहा है, then it is different. Then it is completely different. I hope you understood the message, right? Thank you. And तुम लोगों को, तुमने माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा गालियाँ खाई होगी, तो I hope मैं ही होऊंगा वो. वो ताने या जो भी है, intention was never to abuse that particular individual or. Just a second, let me save the file. You see, there is never a bad intention. We call it as in law mens rea, in case you know, with a bad intention or a malified intention. Intention was never malified. Irritation में तुमको चिल्लाया होगा. That is always under the hope that somebody will understand and they will change. But that's where now I had to go back to the drawing board and think, should I continue with that kind of strategy or should I go with the people, okay, ignore. So that's where time is required. I'll think. I won't change to the core. I would never ever compromise. I'll better quit than the compromising. But like, it's not a situation of quitting, because there is a lot of change that this country truly needs. Too many teachers, good teachers, in not only CA profession, every profession. But unfortunately, I don't know about other professions too much. But in CA profession, I'm seeing a lot of good people either not coming or exiting. And that is very dangerous for the students or the community going forward. Because if the lot of business intended people come up to the course where the outcome of the course is judged by just the marks, it won't meet the main objective. The profession is not known just for its marks or the degrees. It's known for much, much larger things. If you know the CA profession or जो भी successful CA, they're not known for marks. Nobody looks after particular marks. Rank लाना वगैरह सब अच्छा है,
रैंक्स वगैरह सब अच्छा है, लेकिन जो सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ रैंक काफ़ी नहीं है। रैंक में आने वाले हर साल के जब 300-400 बच्चे रहते हैं हर एग्जाम में, रैंक लाने वाले 300-400 बच्चे रहते हैं, 50 नहीं होते, 50 एक रैंक पे डबल रहता है, डबल ट्रिपल रहता है। पहले 2-3 रैंक छोड़ दिया ना, नीचे 3-4-5 लोग रहते हैं, तो इतने सारे बच्चे रैंक में आते हैं। Rank is not going to be a life. Marks is not just life. Life is way broader. I hope you would understand that. Thank you. See you in CF final or intermediate. Bye bye.